Okay, now let us discuss some rain man problems. Okay, when an observer is observing rain standing, okay, at a place, then the velocity with which rain appears to be falling is the real velocity of the rain with respect to the ground. But suppose he starts to move, then what happens? That is when he observes the velocity of the rain, that is the relative velocity of the rain with respect to the man. Okay, so suppose I take one simple case that if rain is falling vertically, okay, suppose the rain is falling vertically with some velocity vr, okay, and an observer is moving horizontally with velocity vm. So man is moving in this direction with velocity vm. So what will happen when he observes the rain? That observed velocity of the rain is called relative velocity of the rain with respect to the man. ठीक है? The velocity of the rain relative to observer will be, वो हम देखते हैं. Let us see how we can calculate it. देखो, this is the diagram. This is a man. He is moving in the forward direction at velocity vm, and rain is falling vertically. Okay, so should he take his umbrella directly vertically upwards or at some angle? We will just observe. Okay, clearly velocity of rain with respect to man we can write as velocity of rain minus velocity of man. ठीक है, these are the symbols, but if I actually put the values, देखो vr is downwards. Okay, so I will write magnitude as vr and then minus j cap to include the direction, okay, because it is falling vertically downward. Now what we should do, put the minus sign of the formula and then vm. ठीक है बेटा, man's velocity is in the positive x direction here, so I can write vm, that is the magnitude, suppose it can be anything, and then I cap. ठीक है बेटा, तो देखो if we draw this, how will it look like? देखो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, vr आ जाएगा. ठीक है, और ये I वाला जो कंपोनेंट है दैट इज इन द माइनस I डायरेक्शन, तो वो किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा. हाउ मच? इट इज vm. तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन होने वाली है विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, वो इधर की तरफ आती है. एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इधर की तरफ आएगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन. मतलब कि द मैन विल ऑब्जर्व व्हेन ही इज रनिंग, he will observe that the rain is falling behind him at an angle, suppose theta, okay, with the vertical. So he should hold his umbrella with the vertical at an angle of suppose theta. ठीक है, इस एंगल पर रखना पड़ेगा उसको. This is his resultant velocity rain with respect to man. ठीक है, यहां से डायरेक्टली दिख गया. अच्छा, इस ट्रायंगल में देखो, this much is vm, दिस मच इज ऑल्सो vm, तो vrm की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, vr स्क्वायर एंड vm स्क्वायर. ठीक है, तो वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला कि आप क्या करो, रेन का स्क्वायर कर दो, मैन का स्क्वायर कर दो एंड एड देम एंड टेक अ रूट, बिकॉज वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर थे दोनों वेलोसिटीज, सो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. ठीक है, एक डायग्राम से फिर से इसको रिपीट करता हूं मैं. देखिए बेटा, मैन इज गोइंग लाइक दिस, ओके, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन? इट इज रेन्स वेलोसिटी प्लस ऑपोजिट ऑफ मैन्स वेलोसिटी. देखो फिर से इसको समझाता हूं मैं, थोड़ा सा इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं. रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन विल बी हाउ मच? velocity of rain, okay, minus v of man. अब ये man का माइनस में करके ऐड करने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको ऐसे लिखूं. So what you understand is rain's velocity and the opposite of man's velocity, वही है
रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा इस डायग्राम में अगर हम चलते हैं वापस से, वी आर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड माइनस वी एम इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो इधर की तरफ आ जाता है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। तो थीटा यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, थीटा tan थीटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बेटा? Vm है और बेस क्या है? Vr है। तो tan थीटा अगर Vm अपॉन Vr था, सो थीटा विल बिकम हाउ मच? tan इनवर्स Vm अपॉन Vr, and this angle is with the vertical. So actually the man should not hold his umbrella like this, he should hold his umbrella like this. उसको ऐसे अपना umbrella करना चाहिए जिससे कि जो रेन ऐसे आती दिखेगी उसको, वो उसको रोक सके, ठीक है, at some angle. What I just said I will repeat, because according to him, when he observes the rain, it is falling like this at some angle with the vertical. He should also hold his umbrella like this at that angle only with the vertical, ठीक है, थीटा पर, so that he is protected well from the rain. ठीक है, I hope you understand this. Let us take a question and improve our understanding. देखो, a man moving with 5 meter per second, ठीक है, is moving with speed 5 meter per second horizontally, observes rain falling vertically at the rate of 10 meter per second. तो इस बार थोड़ा सा केस यहाँ पे डिफर कर रहा है बेटा। यहाँ पे क्या है? मैन इज मूविंग, ठीक है, सपोज आई राइट Vm, तो वो कैसे मूव कर रहा है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है, तो 5 I कैप लिख देता हूं, बिकॉज ही इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ऑब्जर्व्स द रेन, ऑब्जर्व द रेन मतलब ऑब्जर्व वेलोसिटी क्या हुई? द वेलोसिटी विच द मैन इज ऑब्जर्विंग। ओके, सो दैट इज रेन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मैन के ऑब्जर्वेशन के अंडर में जो वेलोसिटी दिखाई देती है वो ये है, वर्टिकली है, कितना है? 10 है, ठीक है। सो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो माइनस जे कैप लिखता हूं इसको फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन। ओके बेटा, तो मैंने मैन की वेलोसिटी लिख दी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड है बाय द मैन, वो कितनी है? -10 जे कैप है, ठीक है। पूछा गया है फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो बेटा हमें क्या निकालना है? एक्चुअली रेन की एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है। देखो, वी अंडरस्टैंड दैट रेन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रेन वेलोसिटी माइनस मैन वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज सिंपल, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो रेन की वेलोसिटी जो एक्चुअल होगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन, वो क्या थी? वो क्या हो जाएगी बेटा? V RM, ओके, प्लस V ऑफ मैन, ठीक है। रेन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन की वेलोसिटी, ये हमें क्या दे देगी? नेट वेलोसिटी ऑफ रेन दे देगी। अब भैया वी कैन सी हियर दैट इट इज -10 जे कैप, ओके, एंड मैन्स वेलोसिटी इज हाउ मच? 5 I कैप। तो इतनी एक्चुअली रेन की वेलोसिटी थी, -10 जे कैप प्लस 5 I कैप, ठीक है। इट शुड बी समवेयर लाइक दिस। देखो, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स के साथ ड्रॉ करूं ऐसे फॉर्म में, I कंपोनेंट कितना है बेटा? 5 है, ठीक। J कंपोनेंट कितना है? -10 है, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, ये 10 हो गया। तो एक्चुअली जो रेन की वेलोसिटी थी ना बेटा, वो ऐसी थी, देखिए इधर की तरफ थी रेन की वेलोसिटी, दिस इज एक्चुअल रेन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्चुअली जा रही थी उधर की तरफ, बट क्योंकि मैन वाज आल्सो रनिंग, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसको कैसा ऑब्जर्व हो रहा था कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट एक्चुअली द रेन वाज नॉट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट वाज एट सम एंगल, ओके। वो एंगल अगर पूछा जाए तो वी कैन फाइंड। तो पहले हमने तो स्पीड निकाल दी है इसकी, इसका मैग्नीट्यूड अगर बेटा हम फाइंड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पे देखिए,
इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने की बात करूं, सो व्हाट आई कैन गेट, वी आर इनसाइड मॉड, it will be how much, 10 square plus 5 square, that will be 125 inside root, 125, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनसाइड रूट. सो दैट विल मेक हाउ मच, इट विल बी 5 रूट. इसको अगर मैं यहां पे ले लूं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है. तो देखो वी आर का मॉड वी हैड गॉट एंड इट वाज रूट 125, ठीक है. तो 5 रूट 5 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है, मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ रेन, राइट. अच्छा बेटा फिर से वापस चलते हैं एंगल देखने के लिए. देखिए यहां पे सपोज आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द रेन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सपोज दैट एंगल इज थीटा. तो वो थीटा कैसे निकाल सकते हैं बेटा हम लोग, देखो बेस इज 10 एंड परपेंडिकुलर इज 5, ठीक है. दिस इज 5 एंड दिस इज 10. तो बेटे यहां पे tan थीटा हाउ मच वी कैन राइट, इट विल बी 5/10, ठीक है. So tan theta, if I write here, tan theta will be how much? It will be 5/10, ठीक है, that is 1/2. तो theta will be how much? It will be tan inverse 1/2. So rain is falling at an angle of theta, that is tan inverse 1/2 with the vertical, okay. देख लेते हैं यहाँ पे, देखो इधर मैन की वेलोसिटी थी vm, वो कितना था 5. नीचे की तरफ किसकी कौन सी वेलोसिटी थी, v ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमें क्या मिला था, v ऑफ रेन, ठीक है. ये एंगल बेटा हमारा थीटा हो गया था, ठीक है. सो दिस इज 10, दिस इज 5. सो वी कैन क्लियरली गेट tan थीटा इज इक्वल टू 5/10. तो बेटा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा.